Assalamu alaikum everyone. I was just waiting for enough participants to be present there. Hope you can see the screen and you can hear my voice as well. I try to be more Walaikum vocal. Salam. Yes, sir. So we will start with the name of Allah, inshallah. We will try to learn something today. So as I told you in intraoral examination from prosthodontics point of view, since you are trying to make the dentures or you're trying to give the prosthesis to your patients where you do not have anything there. It's a ground there. And patient is demanding that I must have my teeth just like my own teeth. So it is very difficult to, make a copy of whatever the predecessors was there. But since you lose so many things, but you have something there to work on. So amongst those areas, the most important area is your anatomical factors. अगर आपको anatomy का पता नहीं है, where you are working there, suppose you are a surgeon, you are doing surgery and you don't know the anatomy there, you can damage the nerves, you can damage the blood vessels. Similarly, in case of your complete dentures, if you don't know the anatomy, you are doing the blunders. उसमें आपका तुक्का लग सकता है कोई एक आध prosthesis अच्छी बन जाए. Otherwise, very difficult to have a good functional anatomical and aesthetically pleasing prosthesis for your patient. तो हमारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि हमने दांत देने मरीज को. दांत देखने में भी अच्छे होने चाहिए. It must apparently must be good enough for your patient, fulfilling all the aesthetic criteria. Then it must be functional as well for your patient, and on the contrary it must preserve the underlying tissues. अगर ये damage कर रहे हैं of your underlying tissues को because of your chronic trauma there, so ऐसी prosthesis का कोई फायदा नहीं है. So according to the clinical significance, you can discuss the anatomy in number of ways. But when you discuss from complete denture point of view, you always divide the anatomy into three different areas: supporting areas, limiting areas, and the structures and the relieving areas. So we will start from the first group, and we will try to cover all of your anatomical structure in these three different areas there. Limiting structures वो हैं जहाँ, as the name is suggesting, that where your borders of your denture base ends up. If you will encroach over these tissues or overextend your prosthesis in these areas, your prosthesis is going to be dislodged during the function. So it's not necessary that your patient is sitting there. It may be all right, but when he started to speak or try to masticate with the prosthesis, these tissues are not going to allow this prosthesis in patient's mouth and would lead to some dislodgement. On the contrary, sometimes your retention, your peripheral seal is very good. You have made a very good peripheral seal with the help of your green stick. Prosthesis is not dislodging there, but it may traumatize your tissues there. Your patient is not be comfortable with that particular prosthesis there. So you have to be careful while you are dealing with these tissues. Limiting structures में कौन से हैं? पहला, अगर हम बात करें फ्रेनाइज, जितने भी फ्रेनम है आपके, वो यहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सबके बिहेवियर तकरीबन एक जैसे ही हैं. We know that we have labial frenum, we have buccal frenum, we have lingual frenum in case of your mandible, we have labial frenum in case of your mandible and the buccal frenum as well. In mandible there is one more extra frenum, that is your lingual frenum, that is attached to your tongue there. So ये है क्या? Frenum is basically a fold of mucous membrane. It don't have any muscular fibers there. So that is why this is something which are not capable of generating the movement. ये attach हुआ होता है with the mucous membrane there. One side is attached with the attached gingiva there, and the other side is attached with the mucous membrane of your cheek, lip, or in case of your mandible, it is attached with the tongue there. So that means one side is attached, the attachment side of this frenum is stable and other side is movable.
So the other side is always attached with some muscles there. दूसरी साइड पे हमेशा इन पे मसल्स होंगे, तो मूवमेंट्स जब होंगी, दैट मूवमेंट लीड टू द मूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर एज वेल. Like any facial expression in case of your maxilla, जैसे आप स्माइल करते हैं तो स्माइलिंग में आपका पूरा अपर लिप रेज होता है, तो दैट वुड मूव द लेबियल फ्रेनम एज वेल. सो अगर आपकी इंक्रोचमेंट इस एरिया में होगी, इसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की, आप कॉम्पोस इंप्रेशन ले रहे हैं, you did not generate this slit there, this groove there to accommodate this frenum there, so it might lead to dislodgement or trauma to this particular tissue there. जब पेशेंट स्माइल करेगा, डेंचर मैक्सिलरी डेंचर ड्रॉप्स डाउन हो जाएगा. अगर बैठा रहेगा तो नहीं होगा, ड्यूरिंग मूवमेंट्स डिसलॉजमेंट होगी. सो अगर इन केस ऑफ अ नॉर्मल फ्रेनम, ये हाफ वे अटैच होता है एट योर रिच. अगर रिच का यहां से लेकर और ऊपर तक का एरिया देखें तो इसके समवेयर इन बिटवीन होता है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ योर टीथ and the resorption of your bone, it comes to lie more superior, or its position used to be more superior. But in some cases ये बहुत overdeveloped भी होते हैं. This fold might be too thick and too highly attached, as in case of your midline diastemas. This may be responsible for your midline diastemas there. So in case if this patient is going to be edentulous later on, so this may create a more bigger space in your denture base there, more deeper space there. So if you are using acrylic, the conventional acrylic, you might have a fracture of your denture base frequently, especially where your palate is too high there. जैसा कि इस केस में यहाँ पैलेट इतना हाई नहीं है इस फिगर के अंदर, अगर आप एरो पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इसमें फ्रैक्चर के चांसेस फिर भी कम होंगे. इफ द पैलेट इज टू हाई एंड द फ्रेनम इज टू थिक देयर, it might be an area of your stress propagation and this might lead to the fracture of your denture base. तो ऐसे पेशेंट्स में frequent fractures होंगे, तो उनमें आप क्या करें, दो तरीके हैं. या तो आप मटेरियल कन्वेंशनल यूज ना करें, आप आजकल के जो एडवांस मटेरियल्स आ गए हैं acrylic में, which are reinforced with the composites and reinforced with some फाइबर्स देयर, जिसके अंदर कुछ फाइबर्स डाले गए हैं, कुछ क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स एड ऑन कर दिए गए, तो दैट वुड इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ योर डेंचर बेस मटेरियल. या फिर आप मेटल की डेंचर बेस यूज करें. तो दोनों तरीकों से यू कैन अवॉइड द फ्रैक्चर ऑफ योर डेंचर बेस. सो दिस इज अबाउट योर फेरेनाइज. ये इन ऑल एरियाज की बात हो रही है. मैंडिबल में लेबियल फ्रेनम, मैक्सिला में लेबियल फ्रेनम, लिंगुअल फ्रेनम में भी यही आप इसको रिलीव करेंगे. अगर बहुत ज्यादा थिक है, समटाइम्स यू कैन इवन डू द फ्रेनेक्टोमीज एज वेल. You can take the help of your maxillofacial surgeons and you can reduce the thickness and the height of this attachment there. Lekin being a prosthodontist, we try to avoid these surgical procedures because our patients usually be medically compromised, बूढ़े होते हैं, over age होते हैं, they usually do not give agreement to go for the surgeries. तो हमने इसको ऐसे ही मैनेज करना होता है. अब ये तो था फ्रेनम. इसके और ऑल अराउंड ऑन द फेशियल सरफेस आपको वेस्टिब्यूल मिलता है, जिसको आप सल्कस भी कहते हैं. अगर आप इस बक्कल सल्कस से लेके, जैसे बक्कल फ्रेनम से लेके इस लेबियल फ्रेनम तक जाएं, तो दिस इज योर लेबियल वेस्टिब्यूल ऑन राइट साइड ऑफ योर पेशेंट. एंड दिस इज अगेन फ्रॉम दिस साइड to this side is your labial vestibule for your left side of your patient. अगर यहाँ देखें तो इसकी अगर बाउंड्री देखें, इनसाइड यू विल फाइंड द बोन, द टीथ. अगर आप यहाँ पर एक्सट्रैक्शन नहीं हुई होती तो टीथ होते, यहाँ पर आपकी बोन होती, देन अटैच जिंजेवा होता, और यहाँ म्यूको आपका अटैच जिंजेवा जो होता है, म्यूको जिंजेवल फोल्ड होता है, यहाँ पर ये अटैचमेंट होती है इसकी. On a facial side, you find the lip there, जहां पर आपका एक मसल है, that is called orbicularis oris, जो कि यहाँ अगर नीचे बिल्कुल जाके तस्वीर में देखें अगर अपनी स्क्रीन पर, this is the muscle there. So this muscle used to form the lip, the architecture of your lip. खास बात इस मसल की ये है कि इसके फाइबर्स हॉरिजॉन्टल हैं. एक बात याद रख लें, जो भी मसल हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा, यानी जो डेंचर बेस है उसके पैरेलल जा रहा होगा, उसके साथ साथ होगा,
that is not going to be that much harmless for your denture base there. अगर यही राइट एंगल पर होता तो इस जैसा कि आपका ये फ्रेना था, तो अगर इस फ्रेनम पे आपकी इंक्रोचमेंट होगी तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी ऑब्वियस देयर. बट इन केस ऑफ दिस एरिया, अगर आप यहाँ पर कॉम्पो से इंप्रेशन ले रहे हैं, आपने इसको ग्रीन स्टिक ज्यादा लगाया या आपकी डेंचर बेस को आपने जो जिसपे आप पेरिफेरी ले रहे थे, इंप्रेशन ट्रे जो थी उसको आपने ट्रिम सही से नहीं किया, ज्यादा मटेरियल ऐड ऑन कर दिया, this muscle is not going to resist this displacement there, और आपको ओवर एक्सटेंशन रिकॉर्ड हो जाएगी इन योर इंप्रेशन. उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, बट whenever you give the prosthesis to the patient there, this prosthesis is going to be dislodged. जब मूवमेंट होगी तो फिर ये मसल यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, या ये फ्रेनम प्रॉब्लम करेगा, या ओवर एक्सटेंशन की वजह से डिसलॉजमेंट होगी या ट्रॉमा होगा इस पेशेंट्स में. सो आपको किस तरीके से पता चलता है कि आपकी ओवर एक्सटेंशन हो गई हुई है? यू ऑलवेज लिफ्ट द लिप ऑफ योर पेशेंट देयर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द म्यूकोजिंजिवल जंक्शन देयर. वेयर इज द म्यूकोजिंजिवल जंक्शन? यू ट्राई टू कीप योर impression tray 2 millimeter shorter to that particular area. फिर उस पर 2 मिलीमीटर की आप ग्रीन स्टिक लगाते हुए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है जितनी मर्जी ग्रीन स्टिक, जितना आपने स्पेस क्रिएट किया हुआ होगा इतनी आप ग्रीन स्टिक लगाते हुए जाएंगे. अगर इस एरिया में इफ यू आर गोइंग टू बी टू थिक फॉर योर ग्रीन स्टिक, वही डेंचर बेस में भी थिकनेस आ जाएगी और रोल ऑन अपीयरेंस आएगी फॉर योर पेशेंट इन योर एंटीरियर लेबियल सर्कस एरिया. तो ये जगह ज्यादा थिक हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ. दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द स्टैटिक्स ऑफ योर पेशेंट एज वेल. तो अगर कोई आपसे पूछता है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टैटिक्स, सॉरी द इंप्रेशन मेकिंग इज द स्टैटिक्स. वो स्टैटिक्स में इंप्रेशन में कैसे स्टैटिक्स आती है? वो इस तरीके से आती है कि अगर आपने बहुत ज्यादा ग्रीन स्टिक की एप्लीकेशन कर दी इनकम्प्लीट डेंचर इंप्रेशंस, तो यहाँ थिकनेस बढ़ जाएगी, रोल ऑन अपीयरेंस हो जाएगी. दैट वुड स्पॉइल द स्टैटिक्स ऑफ योर पेशेंट देयर. Then you have a buccal vestibule. इसी फ्रेनम से, बक्कल फ्रेनम से पीछे की तरफ जाएं तो यहाँ आपको ये ट्यूबरोसिटी का एरिया है और यहाँ जाकर एक डिप्रेशन सा महसूस होता है जिसको टेरिगोमैक्सिलरी नॉच कहते हैं या टेरिगॉइड नॉच भी कहते हैं इस जगह को, इस डिप्रेशन को. So this area extends from the distal side of your buccal frenum to your टेरिगोमैक्सिलरी नॉच जो होती है आपकी, वहां तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है. यहां से पीछे आपका डेंचर बेस नहीं जाएगा. अगर आपने यहां से पीछे एक्सटेंड किया तो इसके पीछे टेरिगॉइड प्लेट होती है, उसमें एक हेमुलस लगा हुआ होता है, स्पाइन होता है इस साइड पर पीछे की तरफ पे. अगर आपने ज्यादा ओवर एक्सटेंशन की, वहां पर टेरिगो मैंडिबुलर रेफी जो होती है आपकी, वो अटैच हुई हुई होती है. अगर आपकी ओवर एक्सटेंशन होगी, वो मूव करती है जब आपका मुंह खुलता है बंद होता है, मुंह खुलता है बंद होता है, तो दैट वुड लीड टू डिसलॉजमेंट ऑफ योर प्रोस्थेसिस. इफ ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव अ गुड रिटेंशन देयर, अगर वो डिसलॉज नहीं हो रहा तो ट्रॉमेटाइज कर देगा टिश्यूज को यहाँ पर. सो दिस इज द डिस्टल मोस्ट लिमिट फॉर योर बक्कल वेस्टिब्यूल देयर. So the size depending on इसका थिकनेस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी? जो आपकी डेंचर बेस होगी इस एरिया में, उसकी थिकनेस किस पे डिपेंड करेगी? रिजॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करेगी कि बोन कितना रिजॉर्व है आपका. फिर सेकंड थिंग इज कि इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो इस जगह पर बिल्कुल, वो है आपका कोरोनाइड प्रोसेस. मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ अगली तस्वीर में. थोड़ा सा ये ब्लर्ड है तस्वीर, लेकिन देखें आप, तो ये आपका मैक्सिला आ रहा है. दिस इज योर फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर. इसके डिस्टल पे अगर आप देखें तो ये जो जगह है आपकी, ये दिस इज योर कोरोनाइड प्रोसेस. यहाँ देखें तो ये सॉरी दिस कॉन्डेलाइट प्रोसेस, ये पीछे कॉन्डेलाइट प्रोसेस है और आगे कोरोनाइड प्रोसेस है. ये जो कोरोनाइड प्रोसेस है, ये जो जाइगोमा है आपका, जाइगोमेटिक आर्च जो है उसके अंदर है. तो ये इन बिटवीन है, बिटवीन योर जाइगोमेटिक आर्च एंड योर ट्यूबरोसिटी. तो इस जगह की थिकनेस जब आप इंप्रेशन ले रहे हैं, बेटा ये म्यूट कर दे माइक. So this area is very important when you are making the impression. तो आपका ये जो जगह है इसको ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए. अगर ये ज्यादा थिक होगी तो इस जगह पर कोरोनाइड प्रोसेस मूव कर रहा है. तो जब पेशेंट वाइड ओपनिंग करेगा जॉ की, जो वाइड ओपन होगा या लेफ्ट राइट मूव करेगा जॉ को, तो डेंचर आपका गिर जाएगा. तो
इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करें? जब भी ये एरिया आप रिकॉर्ड करते हैं, हाफ वे ओपनिंग होनी चाहिए ऑफ योर मैंडिबल, कंप्लीट खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और उसको पेशेंट को कहें कि वो फॉरवर्ड मूव करे जॉ को, इस तरीके से आगे लेके जाए, और देन लेफ्ट राइट मूव करे, इस तरीके से लेफ्ट राइट मूव करे while you are making the impression for this area there, so you are able to record the thickness of this area as well. तो कोरोनाइड प्रोसेस जब लेफ्ट राइट मूव करेगा तो जो आपकी ग्रेन स्टिक होगी वो सॉफ्ट होगी, एंड दिस मूवमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन योर इंप्रेशन। तो ये थिकनेस ज्यादा नहीं होगी। अगर आप इस थिकनेस को ज्यादा रखेंगे डेंचर बेस की, और आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, पेशेंट कहेगा वैसे तो मैं ठीक रहता हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा यॉर्निंग करता हूँ या मुंह ज्यादा खुलता है तो डेंचर मेरा गिर जाता है, या मैं जबड़े को दाएं बाएं घुमाता हूँ तो तब भी गिर जाता है। Sometimes your patient will not complain like this. He would just complain that कि मेरा डेंचर पीछे से ड्रॉप डाउन हो जाता है, पीछे से गिरता है, आगे से नहीं गिरता। तो you come to know by observing this thing. फिर आप डेंचर पेशेंट के मुंह में इंसर्ट करें और उसको कहें वाइड ओपन करो और आगे की तरफ लेके जाओ जबड़े को, और लेफ्ट राइट मूव करो। अगर डेंचर गिर रहा है, that means you are too thick in this area there. So you have to reduce the thickness of this area by applying some indicating pressure indicating piece there. वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको टेरिगोमैक्सिलरी नॉच की बात की थी, वो ये एरिया जब फिगर में अगर आप देखें, ये यहाँ देखें, ये दिस इज दी ट्रिबोरोसिटी और टेरिगोइड हेमुलस के बीच में एक डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड द नॉच एरिया, टेरिगोमैक्सिलरी नॉच, या इसको दूसरे वर्ड्स में हेमुलर नॉच भी कहते हैं। दिस इज द डिस्टल मोस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ योर मैक्सिलरी डेंचर। इससे पीछे आपने डेंचर को नहीं लेके जाना होता, इससे पीछे लेके जाएंगे तो आपको ट्रॉमा होगा टिश्यूज को और डिसलॉजमेंट होगी बिकॉज ऑफ द टेरिगोमैंडिबुलर रेफी व्हिच इज अटैच्ड टू दिस एरिया देयर। इसका फायदा क्या है? इस डिप्रेशन का फायदा ये है, जब आप इसको कंप्लीटली इंगेज करते हैं तो आपका डेंचर आगे की तरफ मूव नहीं करता। इस ट्यूबरोसिटी की वजह से ना ये लेफ्ट जाता है ना ये राइट जाता है, दोनों साइड नहीं जाता। दैट मींस दैट वुड गिव सम दिस बटरेसिंग एक्शन टू मूव द डेंचर फॉरवर्ड एंड लेफ्ट एंड राइट। तो इस ट्यूबरोसिटी का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हमें। लेकिन मैंने आपको बताया ये जब तक कि आप इस एरिया को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक नहीं। अगर आप ओवर एक्सटेंड होंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप अंडर एक्सटेंडेड हो जाएंगे इस एरिया में तब भी आपकी रिटेंशन डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस एरिया में जो आपका सॉफ्ट टिश्यू है या जो म्यूकोजा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और दैट गिव्स आइडियल कंप्रेशन फॉर योर रिटेंशन देयर। जब आप ग्रीन स्टिक इस एरिया में अप्लाई करते हैं, जो 2 मिलीमीटर कंप्रेशन मिलती है जिसकी वजह से नेगेटिव सील डेवलप होती है। अगर आप इससे शॉर्ट रह जाएंगे तब भी वो सील नहीं डेवलप होगी, इससे आगे चले जाएंगे तब भी वो सील डेवलप नहीं होगी। तो दिस इज वन ऑफ द एरिया, ये जो जब हम अभी पोस्टीरियर पैलेटल सील की बात करेंगे तो उसको 2 में डिवाइड करेंगे। एक एरिया ये भी होगा जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये 3 से 4 मिलीमीटर का एरिया यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है, और ये स्ट्रेट नहीं होता है, इट मूव्स laterally and forward, laterally and anteriorly like this always, because this is the shape of your tuberosity there. So you have to respect this area, you have to have an ideal compression in this area। ग्रीन स्टिक को बिल्कुल आइडियल एरिया के अंदर आपने भले चाहें तो आप पेंसिल जो आती है इंडेलेबल पेंसिल, उससे इस एरिया को पहले हाईलाइट करें ताकि आपको ओरल कैविटी में ये नजर आए, फिर इस पे ग्रीन स्टिक अप्लाई करें। देन अभी मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर पैलेटल सील पूरा, या पोस्टडेम जिसको कहते हैं, ये एक टर्म यूज होती है पोस्टडेम एरिया। पोस्टडेम एरिया रिप्रेजेंट अ बिगर स्पेस देयर। तो अगर आप देखें, एक तो एरिया इसकी 2 में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये जगह। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट हो जाएंगे या आप यहाँ पर ओवर एक्सटेंड हो जाएंगे, दोनों सूरतों में आपकी जो पोस्टीरियर पैलेटल सील है वो नहीं बनेगी। इस सील की वजह से ही रिटेंशन आनी है। इस चारों तरफ अगर आप सील नहीं बना सकेंगे तो आपका डेंचर मैक्सिलरी डेंचर रिटेंटिव नहीं होगा। तो आपने इस एरिया में भी सील डेवलप करनी है और इस सेंट्रल एरिया में भी सील डेवलप करनी है। इस सेंट्रल एरिया में जो एरिया है इसको पैलेटल सील कहते हैं। इस पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया है ये। दिस इज योर पोस्टीरियर पैलेटल, दिस इज
pterygomaxillary seal area. This is your posterior seal area. This is your pterygomaxillary seal area. So you can divide it into two. अब इस एरिया को कैसे लोकेट करें, ये लाइन कैसे लगाएंगे ओरल कैविटी में? It's very simple. You just ask your patient to pronounce आ. इस लाइन को आ लाइन भी कहते हैं और वाइब्रेटिंग लाइन भी कहते हैं. This line usually exists over your soft palate. ये junction नहीं है hard and soft palate. It's slightly posterior to your junction of your hard and soft palate. It is always lies on your soft palate. किताबों में कहीं अगर आप confuse होते हैं तो this should keep in your mind that this is always be on your soft palate. This is not going to be over your hard palate or the junction of your soft and hard palate. तो इसको कैसे locate करेंगे? Just you open the jaw of your patient and in short bursts, लंबा लंबा आ नहीं कहना, इसको कहना छोटा आ परफॉर्म करे. You will see the movement of your soft palate there. ये जो soft palate है ये ऊपर नीचे move करता हुआ नजर आए. You will see the movement up and down movement of this area. So you just try to locate the area from where this movement is starting. यहाँ तो मूवमेंट आपको नजर आएगी सब जगह पर, लेकिन आप फोकस करते हुए जाएं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है. वो at the junction area of your soft and hard palate, जहां भी ये स्टार्ट हो रही है वहां इस लाइन को आप लगा दें. This is with the help of your indelible pencil. तो जब आप प्लेट इंसर्ट करेंगे पेशेंट के मुंह में तो ये ब्लू लाइन इसके ऊपर भी आ जाएगी. तो दिस इज द डिस्टल मोस्ट प्रॉक्सिमिटी या बॉर्डर एरिया है फॉर योर डेंचर बेस. अगर यहाँ पर आप शॉर्ट हो जाते हैं या ओवर एक्सटेंड हो जाते हैं, दोनों सूरतों में आपकी पोस्टीरियर पैलेटल सील सही नहीं बनेगी. दोनों सूरतों में योर डेंचर इज नॉट गोइंग टू बी रिटेंटिव. इसके बहुत सारे फायदे हैं पोस्टीरियर पैलेटल सील. सी दिस, यहां पर इन्होंने लाइन लगाई है तो यहां हमें नजर आ रहा है कि दिस लाइन इज स्लाइटली एंटीरियर देयर. बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती इस तरीके से. इट इज ऑलवेज बी अ क्यूपिड शेप. जिस तरीके से इस वाली साइड पर आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, इसमें आप देखें तो यहां जाके ये डिप्रेशन आ जाता है, फिर दोबारा दूसरी साइड पर वो ऊपर की तरफ हो जाता है. क्यूपिड बो की तरह की शेप होती है. क्यों ये इस जगह पर स्पेयर करते हैं हम इसको इस तरीके से आके यूं जाके यूं जाते हैं? क्योंकि यहाँ पोस्टीरियर नेजल स्पाइन होता है. अगर आप एनाटमी, अभी मैं आगे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, जो कि आप ऑर्थोडोंटिक्स में भी पढ़ेंगे, पीएनएस जिसको कहते हैं. आपका पोस्टीरियर नेजल स्पाइन होता है. अगर आप उस बोन के ऊपर अपनी बॉर्डर सील रखेंगे वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो बोन इतना आइडियल नहीं है. वो आपका सॉफ्ट बोन होता है, जब उस पर प्रेशर आता है तो वो रिजॉल्व हो जाता है और कुछ अरसे के बाद लैक ऑफ रिटेंशन होती है उस एरिया में. तो दैट इज व्हाई वी डू नॉट कीप स्ट्रेट लाइन देयर. वी ट्राई टू कीप इट लाइक अ क्यूपिड बो देयर. अब इसका फायदा क्या है इस पोस्टीरियर पैलेटल सील का? मैंने आपको बताया यहाँ कंप्रेशन जो है टिश्यूज की बहुत आइडियल है इस एरिया के अंदर. यू नीड 2 मिलीमीटर ऑफ योर कंप्रेशन. तो आप आइडियली क्या करते हैं, मॉडल को स्क्रैप करते हैं इस एरिया में 0.5 मिलीमीटर स्क्रैप करते हैं विद दी वैक्स नाइफ. हार्ड प्लास्टर का जो आपने मॉडल बनाया हुआ होता है उसके ऊपर स्क्रैप कर लेते हैं, या सॉफ्ट प्लास्टर का बनाया होता है इनिशियल मॉडल जो होता है, पर नॉर्मली हम सॉफ्ट प्लास्टर में बनाते हैं, उसको स्क्रैप कर लेते हैं. स्क्रैप 0.5 मिलीमीटर. 0.5 मिलीमीटर क्यों करते हैं स्क्रैप? ताकि जब आप ग्रीन स्टिक लगाएं तो वो 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर कंप्रेशन मिले आपको वहां जाके, और आपकी सील जो है वो इफेक्टिव हो. दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप प्रोसेस करते हैं डेंचर को, एक्रेलिक को, तो उसमें always you would find some of the contraction of your denture base there. This is ultimate. उसको आप रोक नहीं सकते. जो 0.6 जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होनी है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को भी आपने कॉम्पनसेट करना. इस एरिया में अक्सर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से आपका डेंचर बेस लिफ्ट हो जाता है. तो आप देखते हैं कि आपका इंप्रेशन जो था उसमें तो ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट बना रहा था विद दी सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट देयर, लेकिन जब आपने डेंचर को प्रोसेस किया तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप महसूस होता है. उस गैप को कॉम्पनसेट करने के लिए हम मॉडल को स्क्रैप कर लेते हैं, जिसको इस स्क्रैपिंग को कहते हैं पिन डैमिंग या पोस्ट डैमिंग. इस एरिया में पोस्ट डैमिंग करते हैं, पिन डैमिंग नहीं करते, क्योंकि इसकी विड्थ भी 0.5 मिलीमीटर होती है और इसकी हाइट भी या डेप्थ भी 0.5 मिलीमीटर होती है. इससे क्या फायदे होते हैं? एक तो सील बनती है, दूसरा फूड इसके नीचे नहीं ट्रैप होती है. अगर आपकी पोस्टीरियर पैलेटल सील इफेक्टिव होगी तो खाना डेंचर के नीचे नहीं जाएगा. अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि फूड ऑक्यूपाई करती है डेंचर के नीचे, दैट मींस के योर पोस्टीरियर पैलेटल सील इज नॉट इफेक्टिव देयर. या आप शॉर्ट हैं उस एरिया में, या आप
की कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी की वजह से वहां गैप बन गई हुई है. सो यू हैव टू लोकेट, यू हैव टू मार्क दिस लाइन इन पेशेंट्स माउथ, अगेन इंसर्ट दिस डेंचर इन पेशेंट्स माउथ एंड ट्राई टू लोकेट दिस लाइन. वेयर इज दिस लाइन? अगर आपकी ये लाइन आ नहीं रही डेंचर बेस के ऊपर, दैट मीन्स यू हैव अ गैप देयर. अगर आपका गैप है तो दोबारा से ग्रीन स्टिक अप्लाई करें यहाँ पे, उसको रीप्रोसेस करें. यू कैन ऐड दी एक्रेलिक ओवर योर हीट क्योर एंड सेल्फ क्योर. ये इसकी एक्रेलिक्स के अंदर एक ब्यूटी है जहां एडिशन पॉसिबल होती है. तो इस पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को यू कैन कॉम्पनसेट बाय स्क्रैपिंग द मॉडल. अगर आप स्क्रैप कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी. This is about the limiting structures of your maxilla. ये हमने सारे जितने किए ये limiting structures थे maxilla के. अगर mandible में देखें तो इसके borders दो साइड पर हैं, facial साइड पर या labial साइड पर भी है और इसका buccal साइड पर भी है. And then you have on a lingual side as well. Double border होता है, small surface area होता है mandibular denture में, नीचे tongue होती है जिसकी वजह से mandibular dentures are going to be a nightmare for a डेंटिस्ट टू फैब्रिकेट. इस वजह से आपने देखा होगा नॉर्मली लोग घबराते हैं कि मैंडिबुलर डेंचर स्टेबल नहीं होता पेशेंट के. बहरहाल अभी हम सिर्फ लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि बक्कल साइड पर या फेशियल साइड पर आपके कौन से लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और लिंगुअल साइड पर आपके कौन से लिमिटिंग. फ्रेनम, एज आई टोल्ड यू, बक्कल फ्रेनम है आपका, लेबियल वेस्टिब्यूल है इस साइड पर अगर आप देखें. देन यू हैव अ बक्कल फ्रेनम ऑन दिस साइड अगर आप देखें. Then you have a buccal vestibule, similarly as I told you in the maxillary case, but here the anatomy is a bit different. Then you have a masseter muscle influencing area. ये जो area होता है अभी हम इसको discuss भी करेंगे डिटेल के अंदर. This is masseter influencing area there. और ये है आपका retromolar pad. ये बिल्कुल ये यहाँ पर एक थोड़ी सी protuberance सी महसूस हो रही है PA shape. This is called retromolar pad. Then अगर आप lingual side पे बात करें तो लिंगुअल साइड पर आपका फ्रेनम है यहाँ पर, लिंगुअल फ्रेनम. देन यू हैव पैलेटोग्लॉसस आर्च, ये जो कि यहाँ पर मिलेगी आपको इस एरिया में, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं. ये लिंगुअल पाउच थोड़ा, ये पैलेटोग्लॉसस आर्च यहाँ मिलती है पीछे की तरफ, और यहाँ जो होती है ये जो जगह है इसको कहते हैं लिंगुअल पाउच, जिसको आप रिट्रोमाइलोहाइड पाउच भी कहते हैं या रिट्रोमाइलोहाइड स्पेस भी कहते हैं. इस एरिया के अंदर भी होता है. Then you have sublingual salivary gland. ये इस जगह पर sublingual salivary gland होता है आपका. Then you have lingual frenum. यहाँ एक एक करके इन चीजों को देखते हैं क्या है. अभी हमने ऊपर मैंडिबल में बात की, ये है retromolar pad. अगर आप मैंडिबल में देखें, the distal most proximity of your mandibular denture is this retromolar pad. लास्ट मोलर जो थर्ड मोलर होता है आपका, उससे पीछे एक पियर शेप उभार सा महसूस होता है, सॉफ्ट टिश्यू मास होता है जो कि पियर शेप, नाशपाती की शेप का होता है. दिस इज कॉल्ड रिट्रोमोलर फैट. ये हर पेशेंट में आपको मिलेगा, कहीं थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, कहीं थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, बट यू कैन लोकेट दिस एरिया इन योर मैंडिबल. पोस्टीरियरली अगर आप देखें तो इस एरिया को, इसको आप यू कैन डिवाइड दिस पियर शेप मास ऑफ द टिश्यू इनटू टू हाफ्स. नीचे से अगर यहाँ से एंटीरियरली शुरू करें तो यहाँ आप 50% से ज्यादा ले जाएं इसको, इस तरीके से 50% से ज्यादा, जिसको आप कहते हैं 2/3 एरिया. ये जो 2/3 एरिया है, ये जो यहाँ इंटीरियरली 2/3 एरिया है, दिस इज आइडियल फॉर योर डेंचर एक्सटेंशन. यहां तक आप डेंचर की एक्सटेंशन कर सकते हैं, इससे पीछे आपने डेंचर की एक्सटेंशन नहीं करनी. इसकी दो तीन वजूहत हैं. एक वजूहत, फर्स्ट रीजन है कि यहाँ जो बोन है आपका वो कॉर्टिकल बोन है, हार्ड बोन है. दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई मसल अटैचमेंट नहीं है आपकी 2/3 एरिया में, और यहाँ आपके जो टिश्यूज हैं वो एरोलर टिश्यूज हैं जो कि कंप्रेशन को परमिट करते हैं. वी नीड पेरिफेरल सीम. दैट्स व्हाई वी नीड the the soft tissues, which are the connective tissues must be soft there. So this area has got all the good qualities. This anterior 2/3 area has got all the good qualities to boost the retention and the stability and the support of your complete. इस एरिया को आजकल प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया भी कहते हैं. प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया मैं सपोर्ट में डिस्कस करूंगा, फिर आपको बताता हूं कि वो क्या होता है.
अब इसका जो पोस्टीरियर 1/3 एरिया यानी इसका 50% से ऊपर का 50% तो आपने डेंचर बेस में इंक्लूड कर लिया, इससे पीछे वाले को स्पेयर कर दिया। वो स्पेयर क्यों किया पोस्टीरियरली? क्योंकि उसके अंदर टेम्पोरलिस फाइबर्स कुछ आ रहे होते हैं, कुछ बक्सिनेटर्स के फाइबर्स आ रहे होते हैं, और टेरिगोमैंडिबुलर रेफी जो मैंने ऊपर से बताया था, ये जो नजर आ रही है ना आपको, ये टेरिगोमैंडिबुलर रेफी। जब पेशेंट का मुंह खोलते हैं आप, तो आपको इस तरीके की एक लाइन नजर आती है जहां ब्लॉक लगाते हैं, या इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस के एरिया में। तो ये जो फाइबर्स आ रहे हैं, ये यहाँ जाके इंसर्ट हो रही है, इसके भी कुछ फाइबर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं, और ये जो खुद होती है ये पीछे जाके इंसर्ट होती है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के अंदर। तो ये जो टेरिगोमैंडिबुलर रेफी है आपकी, इसका थोड़ा सा इंटीरियर लीवी फाइबर्स आ रहे होते हैं, इसके अंदर कुछ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स के फाइबर भी यहां तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं इन सम केसेस। दैट इज व्हाई वी नेवर इंक्लूड दिस पोस्टीरियर 1/3 एरिया इन योर डेंचर बेस। अगर आप ये पूरा का पूरा रिट्रोमोलर पैड अगर डेंचर बेस में इंक्लूड कर लेंगे, तो योर डेंचर इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड। पीछे से लिफ्ट करेगा, जैसे पेशेंट मुंह बड़ा खोलेगा ये डेंचर लिफ्ट कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा रिस्ट से। So this is about the explanation about this area. ये एरिया बहुत स्टेबल है, यानी आफ्टर द एक्सट्रैक्शन आपको ये पियर शेप जो मास है ये एज सच फॉर्म में मिलेगा। इसके अंदर कोई शेप में कोई इसकी मास की जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती, और ये मोर स्टेबलाइज रहता है, और इसकी बोन जो है एंटीरियर टूथ हेड एरिया में वो भी स्टेबलाइज रहती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस एक तो ये कि आपकी डेंचर बेस जो होती है वो यहीं एंड अप होती है, इसी जगह पर, इससे पीछे आपने नहीं जाना होता। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका जो ऑक्लूजल प्लेन है, अब आप जब दांत लगा रहे हैं मैंडिबल के अंदर, तो आपको क्या पता कि इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, डेंचर ये जो टीथ हैं इसकी किस हाइट पर जाएंगे, ये हमारी मर्जी नहीं चलेगी वहां पर। यू हैव टू सी दिस एनाटॉमिकल लैंडमार्क देयर। इसका जो 2/3 लेवल आ रहा होगा उससे ऊपर ऑक्लूजल प्लेन आपका मैंडिबल का नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर होगा आपका ऑक्लूजल प्लेन, दैट मींस योर डेंचर इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड। और दूसरी चीज आपने ऑक्लूजल प्लेन में ये देखनी है कि ये जो डॉर्सल सरफेस है टंग की, इससे नीचे होना चाहिए आपका ऑक्लूजल प्लेन जो है, इससे नीचे होना चाहिए यहाँ बिल्कुल। अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो जब आप फूड मैस्टिकेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग? It pushes the food over your occlusal table. It pushes the food over your occlusal table. अगर ये occlusal table आपका ऊपर चला गया जबान से, it's very difficult for your tongue to manage this, activity there. तो उसमें क्या कंप्लेन करेगा पेशेंट आपका कि मैं खाना चबाता रहता हूँ मुंह के अंदर, लेकिन मैस्टिकेशन नहीं हो पाती, मैं चबा नहीं सकता। पेशेंट कहेगा कि फूड मेरे मुंह में घूमती रहती है और काफी टाइम लगता है मुझे। तो दैट मीन्स कि if your occlusal plane is higher than this level, you are going to face a problem there. इसमें एक तो प्रॉब्लम ये होगी, दूसरा ये होगा वर्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा, या वर्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा या फिर आपका स्टैटिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, नीचे के दांत ज्यादा नजर आएंगे और ऊपर के दांत नजर नहीं आएंगे। तो लिहाजा आपको ये कंसीडरेशन, मॉडल के ऊपर भी ये आपको रिट्रोमोलर पैड नजर आएगा, आप उस पे इसको इंसर्कल करें और इसका 2/3 लेवल डिटरमिन करें। जब आप डेंचर टीथ लगाना शुरू करें तो आप कोशिश करके उसको इसी लेवल के ऊपर लगाएं। फिर मैंने आपको बताया था मैसेटर मसल इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है, ये जो एरो हेड नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ अगर आप देखें तो डेंचर बेस जो है, अगर सपोज दिस ब्लू लाइन इज योर, दिस ब्लैक लाइन इज योर डेंचर बेस, तो ये डेंचर बेस स्ट्रेट ऐसे करके यूं नहीं जाएगी यहाँ पर, यहाँ आपको एक छोटा सा एक डिप्रेशन सा महसूस होगा। ये डिप्रेशन क्यों है? इसको मैसेट्रिक ग्रूव भी कहते हैं या मैसेटर ग्रूव भी कहते हैं। ये मैसेट्रिक ग्रूव किस तरीके से बनता है, थोड़ा सा इस फिगर की तरफ देखें। यहाँ अंदर की तरफ जो चीक का मसल है दैट इज योर बक्सीनेटर, इसके बाहर जो है वो आपका मैसेटर है। तो जब आप क्लेंचिंग करते हैं, दांतों को मिलाते हैं, तो ये मसल जो होता है ये एक्टिविटी में आता है और इसको पुश करता है, इस वाले मसल को, अंदर वाले मसल को, विच इज योर बक्सीनेटर। तो ये मैसेटर जो है इसको पुश करता है, यानी ये चीक को, ये तो चीक है आपका, ये मसल जो है जब ये चीक को पुश करता है तो चीक यहाँ से अंदर की तरफ प्रेस होता है।
this depression has to be recorded in your denture base. अगर नहीं होगा तो clenching के दरमियान patient को trauma होगा on this distobuccal area of your denture base. तो आप जब impression ले रहे हैं mandible का, तो आप उस वक्त इस mesenteric groove को किस तरीके से record करेंगे? You just insert your fingers, keep finger in this area जहां में आपको arrowhead नजर है, premolar area जो होता है आपका denture base का, उसके ऊपर आप इसको रख दें fingers को, और पेशेंट को कहें जॉ को बंद करें, आप फोर्स नीचे की तरफ लगाएं, उस फोर्स को रेजिस्ट करें ताकि आपका मेसिटर जो है वो एक्टिवेट हो जाए। वो पेशेंट प्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स लगा रहा है, आप मैंडिबल को फोर्स कर रहे हैं नीचे की तरफ। सो यू वुड बी एबल जस्ट मेक द सॉफ्टनिंग ऑफ योर ग्रीन स्टिक इन दिस एरिया, या अगर आप इनिशियल इंप्रेशन ले रहे हैं रेड केक कॉम्पो के अंदर, तो आप अपनी फिंगर्स को इस एरिया के अंदर रखें, आस्क योर पेशेंट टू क्लोज द जॉ एंड यू रेजिस्ट दिस क्लोजर ऑफ the jaw by your fingers by putting down a downward pressure over your impression tray there. So by that way you can record the mesenteric grooves there. Then you have a platoglossus arch जो होती है, ये हमें पता है कि ये soft palate के ऊपर से ये glossus platoglossus जो extrinsic muscle है टंग का, वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, और ये एक circular structure होता है जो नीचे की तरफ यूं घूमता हुआ आता है. This arch is going to be